नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं हर संडे आपके साथ जुड़ जाता हूं और आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूं। मेरा ये मानना है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें जेनरिक इश्यूज डिस्कस करने की कोशिश हमेशा करता हूं। इस संडे जो 1 तारीख को निर्मला सीतारमण जी जो अपनी अर्थ मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो बजट पेश किया उसके ऊपर हमें क्या मिला, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या मिला, इसके बारे में मैं एक ये छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हमें बहुत सारा मिला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा। कुछ नई चीज़ें जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं जो बजट एनालाइज कर रहे हैं जिनका ध्यान नहीं गया है, क्योंकि हमारा सेक्टर छोटा है, हमारे सेक्टर में ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस बजट में कुछ अनाउंसमेंट ऐसी आई हैं, एज ए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर अगर आपका उस अनाउंसमेंट पे ध्यान जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मैं कोई बजट एक्सपर्ट नहीं हूँ या फिर पब्लिक फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे जो दिखता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी के जितने भी बजट एनालिस्ट है उन सब ने कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या क्या मिला इसका मैं पासिंग रेफरेंस दूंगा। लेकिन 3 मेजर चीज़ें जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, द 3 मेन थिंग्स which the urban cooperative banker must identify and connect with this budget. To start with, for the first time in an annual budget, one Vedic word has been used by the finance minister. What is that Vedic word? Amrit Kal. You will find that Amrit Kal word was used by our Prime Minister somewhere in 2021 when he was talking to youth of the country. अमृत काल का मतलब क्या है? अमृत काल का मतलब ऐसा है कि दिस इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम फॉर what is or the critical time when the gates of greater pleasure open for inhuman angels and human beings. And to start any new work, Amrit Kal is considered to be the most auspicious time because that's where the India is trying to move. We want to be a $5 trillion economy. We are already a quasi superpower. We do not call it completely a superpower because there are several things which have not yet fallen in place. और ये जीवन काल का दौर है। ये जो जीवन काल का दौर है इसमें ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें होनी है इंडिविजुअल के लाइफ में, देश के लाइफ में, ग्रुप ऑफ पीपल के लाइफ में, दिस इज़ अ 25-year period. That's what the Prime Minister said then in 2021. Coming back to the budget, what the urban cooperative banks have got. Let's go back to certain clipettes which are very important for us to understand. If you look at the finance minister's speech, you will find that they have given you the priorities, the government of India's priorities. What are the priorities? 1, inclusive development. 2, reaching the last mile. 3, infrastructure and investment. 4th, unleashing the potential. 5th, green growth. 6th, youth power. And 7th is financial sector. That's where you and me belong. For the first time, you will find that the finance minister has devoted at least 7 to 8 paragraphs on the cooperation. The word cooperation has been uttered by the finance minister at least 25 different times. For the first time, the cooperative sector has got so much of significance, mainly because the ministry is handled by a stalwart in central government. तो स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, सरकार से समृद्धि जो नैफकप का नारा है वो गवर्नमेंट ने पिकअप कर लिया है एंड दे वुड लाइक टू ड्रॉ इट। पैक्स और इन सबको या शुगर केन कोऑपरेटिव्स को बहुत सारी सहायता इसमें दी गई है, टैक्सेशन में रिलीफ दिया गया है और मैसिव चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ बैंकर यू शुड नो दैट
the investment in infrastructure sector will touch around 10 lakh crores. That's a huge amount. And of course, it will be some 3% of the GDP. And secondly, one more area where as an urban cooperative banker I would like you to pay attention to is artificial intelligence. ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें इस बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया. सो इफ़ यू आर लुकिंग एट लॉट ऑफ ऑटोमेटेड एक्शंस, जैसे अभी चैट जीपीटी की भी बात चल रही है, शायद गूगल का सर्च इंजन रिप्लेस हो जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर गोइंग टू बी द की थिंग्स फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री, और हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर्स इसमें पीछे ना रह जाएं. आपको याद होगा कि डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भी गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, और दे इंटेंड टू ब्रिंग डाउन और ब्रिंग अप रादर national data governance policy apart from the data protection. One of the key things which you as a urban cooperative banker should know is that they intend to simplify the KYC process with the help of technology. हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा वो ये तो रेगुलेटर जो कहेगा, रेगुलेटर के जो डायरेक्शंस आएंगे उसके ऊपर उसके हिसाब से इसमें बदलाव होंगे. KYC will be quickest and fastest, and a lot of archaic rules would be done away with. They are also planning to use PAN card as a common business identifier. मुझे लगता है कि जो हम लोग क्रिल्क में करते हैं, क्रिल्क में रिपोर्ट भेजते हैं या फिर डेटा हम लोग सबमिट करते हैं, उन सब के पीछे एक कनेक्टिविटी वो लाना चाहते हैं कि एक नंबर से सब कुछ कनेक्ट किया जाए. सो PAN इज़ गोइंग टू बी क्रिटिकल फैक्टर. आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर में अगर आप यूज़ करते हो डिजी लॉकर में, तो उसमें आपका पैन, आधार, पासपोर्ट वगैरह सब आप डाउनलोड करके रख सकते हो, और दैट विल बी ट्रीटेड एज वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन. फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit and participation in financial market. And this budget, they would like to further these measures. क्रेडिट गारंटी के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. 9,000 करोड़ इन्फ्यूजन उन्होंने इसमें एडिशनली किया है. वो लोग नेशनल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री भी चालू करना चाहते हैं, और कॉर्पोरेशन के बारे में उनका यही कहना है कि प्राइम मिनिस्टर का जो गोल है सरकार से समृद्धि, दे वुड लाइक टू ऑगमेंट दिस पर्टिकुलर गोल and ensure that cooperatives are a better form of ऑर्गेनाइजेशन. शुगर इंडस्ट्री जो है कोऑपरेटिव, शुगर कोऑपरेटिव्स में उनको उन्होंने लगभग 10,000 का टैक्स में रिलीफ दिया है, तो ये रिलीफ काफ़ी बड़ा होगा. और बाकी जो हायर लिमिट ऑफ ₹2 लाख पर मेंबर फॉर कैश डिपॉजिट्स टू एंड लोन्स इन कैश बाय प्राइमरी पैक्स, जिसको पैक्स कहते हैं, उनके बारे में उन्होंने दिया है. हायर लिमिट 2 करोड़ के ऊपर TDS था, वो 2 करोड़ की लिमिट अभी 3 करोड़ करवा दी है उन्होंने कैश विड्रॉल के लिए. तो ये सब चीज़ें जो है मोटी मोटी है, जिसके ऊपर हमारे जो एनालिस्ट थे उन्होंने सबने कुछ ना कुछ कहा है उसमें. मुझे जो आपका जो ध्यानाकर्षण करना है, दी अटेंशन आई वुड लाइक टू ड्रॉ ऑन 2 things, 2 or rather 3 things. I'll read out and will try to interpret for you. अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को क्या मिला, तो ये मिला. एक है, उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन के बारे में उन्होंने कहा है टू मीट द नीड्स ऑफ अमृतकाल एंड टू फैसिलिटेट ऑप्टिमम रेगुलेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर, पब्लिक कंसल्टेशन as necessary and feasible will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary direction. This is one thing that they have said. And second that they have said is this. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कोई रेगुलेटर होगा, सेबी होगा, रिजर्व बैंक होगा, उनको कंसल्टेटिव प्रोसेस करना अनिवार्य होगा, सुनने वाला कोई तो होगा. तो दिस इज़ द बिग चेंज, बिग शिफ्ट इन द बजट. ये स्टेटमेंट बजट में क्यों किया? मुझे लगता है कि शायद रेगुलेटर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी हमारी जो सेक्टर की जो दुख है, दर्द है, उसको शायद स्थान नहीं मिला है.
आवाज़ पहुंच गई है, ऐसा मुझे लगता है। ये नहीं तो सेंटेंस या पैराग्राफ फाइनेंस मिनिस्टर को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रेगुलेशन मेकिंग, रेगुलेटर एंड रेगुलेटिंग should be on a common platform. Here what is happening is that regulation and the regulating, there is a wide gap. That gap government of India would like to plug is what I believe. And then और एक बढ़िया चीज़ फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, वो ये कहते हैं पॉइंट नंबर 100, to simplify, ease and reduce the cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limit to decide the application under various regulations will also be drawn. आप रेगुलेटर को अर्जी करते हो, 6 महीना 7 महीना आपको जवाब नहीं मिलता है, टाइम फ्रेम आ जाएगा, हाँ या ना, डिसीजन तो मिलेगा। हम एक दुख में, दर्द में जी रहे थे कि रिजर्व बैंक को लिखने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता है। शायद ये जो स्टेटमेंट आया है पॉइंट नंबर 100 पे, आप फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच कहीं से भी पढ़ के देख लीजिएगा, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हालांकि हमें फाइनेंशियल रिलीफ कोई नहीं चाहिए, कुछ चाहिए भी नहीं, हमें जो रेगुलेट करने वाले बंदे हैं वो हमारा सुने, इतनी ही अपेक्षा है। एंड डिस्कनेक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हम लोग उसको दूर करें, डिस्कनेक्ट को दूर करें। और एक बढ़िया चीज़ आई है पॉइंट नंबर 103 पे, फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि टू इम्प्रूव बैंक गवर्नेंस एंड एनहांस इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, सर्टेन अमेंडमेंट्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आर बीइंग प्रपोज्ड। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, ये बिल कहीं लिस्ट तो हो गए हैं, नहीं दिखता है, पार्लियामेंट की साइट में भी नहीं दिख रहे हैं, बिल लिस्ट नहीं हुए, दिस इज प्रपोज्ड। क्या हम आशा कर सकते हैं बीआर एक्ट में जो कठिनाइयाँ हम लोग फेस कर रहे हैं, उन कठिनाइयों का कुछ जवाब हमें मिलेगा? तो मुझे ये लगता है कि ये जो 2-3 पैराग्राफ है जिसका ध्यान, जितने भी बजट के एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका ध्यान इसके ऊपर गया नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को क्या मिला है? एक आश्वासन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वही तुम्हारी भी सुनी जाएगी, तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी इग्नोर्ड, इट विल बी गिवन प्रॉपर एंड ड्यू वेटेज। तो जो आप कहना चाहते हो वाया नाफका, वाया फेडरेशन, जो भी आप कहना चाहते हो वो सब आप उनको सुनने को मजबूर कर सकते हो, रीज़न कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि ये बजट में ये जो 2-3 प्रॉमिसेस मिले हैं, ये प्रॉमिसेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड वी शुड रिजॉइस दैट दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कोऑपरेशन हैज़ बीन गिवन इट्स ड्यू वेटेज, ड्यू इम्पोर्टेंस। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ऊपर आपको कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या मिला है वो आपको पता चल जाएगा। बजट का स्पीच पढ़ो, बजट के प्रपोजल्स पढ़ो, आपको पता चल जाएगा, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने ये 3-4 चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब क्या निकलता है, और इसीलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया है कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर दिस सेक्टर, and we will be able to represent our grievances to the regulators time and again till we get the solutions that the sector desires. आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं कमेंट्स के लिए मेरा ईमेल भी देता हूँ, आप अपने कमेंट्स भी उसमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं। मुझे आशा है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ सनराइज मूवमेंट, Amritkaal for the urban cooperative banking sector, not in terms of money, but in terms of ease of doing business. That's the buzzword, isn't it? Thank you. Thank you for watching me.